ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੈਲੀਬਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੀ ਸੀ ਐਤਕੀ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਨਰ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਵਰਸਟ ਮੇਰਾ ਐਨੀਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੈਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਂ ਤੇ ਬੂਥਾ ਇਹਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਚੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤਸਲੀਮ ਜਾਫਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਆਈ ਡਿਡ ਦੈਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਸਨ ਅਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੁੱਕ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ 10% ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਹਸਨ ਅਬਾਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 10% ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ 10%। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ MOU ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਟਰ ਆਉਣਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਸਰ ਜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ? ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 4,500 4,500 5 सारी पढ़ियाँ भी हैं? सारी पढ़ी भी हुई हैं। लोगों को इनके राइटर्स के नामों का नहीं पता, मुझे इनके फिनॉल्पी करैक्टर्स के नामों का पता। मतलब जो अंदर ऐसे ही हम रख लेते हैं ना, अख्तर जावेद नाम रख लेते हैं, मुझे तो इनके उन हीरोज़ का पता, ईच एंड एवरी बुक सारी। और अब भी मैं सोना ये देख लें पढ़ी हुई है। अब मुझे बताएं ना इस लेवल पे कौन तर्जमा करता है? ये किताबें ख़रीदनी आसान। अच्छा सर, आपके ज़हन में ये कैसे आया कि एक रवायती चल रहा था जिन परियों की कहानी और ये उसमें जिद्दत लाई जाए, ये आपने कैसे सोचा और इस पर अमल किया? सर देखें एजुकेशन के हिसाब से और बैकग्राउंड के हिसाब से होता है ना, हमने उनको पढ़ा है जो हमारे साथ हैं वो इस तरह नहीं लिखते थे। उस वक्त ये नहीं था, टीवी वगैरह नहीं था, तो दो तरह के राइटर थे। एक तो ये थे नौबहार बुक डिपो वाले या बच्चों की दुनिया बुक डिपो वाले, ये बेसिकली टोटली माफूकुल फितरत लिखते थे। इनमें ये सोशल स्टोरीज नहीं लिखते थे। उसके बाद इनका एक और मैगज़ीन आया बच्चों का बाग, उसमें थोड़ी सी स्टोरीज़ कई दफ़ा जो हैं वो सोशल स्टोरीज़ भी आनी शुरू हुई। उसके बाद जुगनू आया, ठीक है ना। जुगनू भी शुरू में मतलब जैसे तालीम और तरबियत था इस तरह का, मतलब बड़ा खूबसूरत मैगज़ीन था। दूसरी तरफ थी नौ निहाल की अपना एटीट्यूड था, वो छोटे बच्चों के लिए, तालीम और तरबियत भी छोटे बच्चों, लेकिन 10-11 साल तक वो था। लेकिन सारी कहानियाँ जो थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो ये नहीं थी कि वो सिर्फ वो जिन की जो जान है वो किसी आम के दरख्त में है और ये नहीं होता था, वो बाकायदा एक थीम होता था, ठीक है ना जी। प्रॉब्लम सब हमारे राइटर्स की यही है जो छोटे बच्चों के लिए लिखते हैं कि परियां और बोनों की जो ज़ुबान है ना वो बच्चों को ज़्यादा जल्दी समझ में आती। तो आगे मैसेज देना आपका काम है, ये आपकी बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप बच्चों को क्या देना चाहते हैं। तो मैंने हमेशा यही किया कि मैंने एथिकल लेसन्स, मेरी समझ में यही बात आई कि 5 से 7 साल के बच्चे जो हैं
उनको अल्लाह ताला ने भी माफ़ी दी है, ये नमाज रोज़े से ना, उनको कहा कि प्यार से इनको लगाएं, खुद नमाज़ पढ़ें और इनको मोटिवेट करें कि ये नमाज़ पढ़ें, सज़ा को नहीं रखी। तो उस दौर पे वो जो उनका ये टाइम है, मैं चाहता था कि मैं इनको एथिकल लेसन, मुआशरती लेसन देंगे, ये हाउ टू लिव योर लाइफ, मोहल्ले में कैसे रहना, जिन्हें हम हकूक़ुल इबाद कहते हैं, वो हकूक़ुल इबाद से कोई चीज़ ये पिक करेंगे तो कल को अच्छे इंसान होंगे। अच्छे इंसान होंगे तो अच्छे मुसलमान होंगे, और अच्छा मुसलमान हो नहीं सकता जब तक वो 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते। तो बेसिकली मैं वो शुगर कोटेड चीज़ ही दे रहा था, लेकिन मैं बच्चों का बचपन छीन नहीं रहा था। मैं उनको उनके वो पोंचे ऊँचे करके या उनको स्पेशल चिल्ड्रन बना के उनके सर पे टोपी रख के इस तरह की तरबियत नहीं। मैं उनको प्रोग्रेस मुस्लिम देखना चाहता था, जो मुसलमान भी हों, शरह के मुताबिक हों, लेकिन वो ज़िंदगी के साथ तरक्की भी करें। तो आप देख लें मेरी जितनी स्टोरीज हैं उनमें परियां बोने जो हैं वो डू इट नहीं करते, ये प्रोविजन है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ही करता है ना जी कि ये हो जाए ये ना हो। मेरी परियां और बोने तो 1-1 साल लगता है उनको, वो मेहनत करते हैं, फिर कहीं कोट ख़रीदते हैं जाकर। मेरे बच्चे जो हैं वो अगर चुगली सुनते हैं तो उनके कान लंबे हो जाते हैं, अगर वो किसी के काम में नाक अड़ाते हैं तो उसका नाक लंबा हो जाता है, अगर वो किसी के चींगे चढ़ाते हैं तो उसकी टांगें, वो जो आंखें हैं वो बैंगी हो जाती, ज़ुबान बाहर लटक जाती। उसके बाद जो उनके साथ हिलेरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि वो जब अपने हेडमास्टर से बात करता है तो वो ज़ुबान उसने बंद की होती है, वो कहते हैं जवाब क्यों नहीं देता, जब वो जवाब देता है तो वो ज़ुबान बाहर लटक जाती, ठीक है। तो वो हेडमास्टर कहता है तुम मेरे भी ये मुँह बना रहे हो मेरे, फिर वो घर जाता है, फिर वो माँ के से आखिर फिर वो दुआ मांगता है कि या अल्लाह मुझे माफ़ी दे। जब उसे तो फिर वो शुमाल की आवाज़ जो चल रही होती है वो सडनली रास्ता तब्दील करती है। तो रिचुअल ये होता है कि जब हवा एकदम चेंज करे तो जो आप दुआ मांगते हैं वो अल्लाह ताला कबूल, तो उसकी दुआ कबूल होती है तो वो उसको माफ़ी मिलती है। तो आगे से वो तौबा करता है कि मैंने किसी के ये मुँह नहीं चढ़ाना या किसी बुज़ुर्ग की जो है ना जो ह्यूमिलेशन नहीं करनी। तो इस तरह की कहानी। अच्छा, 40 से ज़्यादा आपकी बच्चों पर कुतब हैं। हाँ जी। और आपकी पुलिस में जॉब थी बतौर SHO, 40 के करीब SHO। तो ये एक मुश्किल यानी टास्क होता है कि SHO हो और ये एक बच्चों की किताबें लिखना, वक़्त कैसे निकाल लेते थे? देखें मेरा ये तो क्वेश्चन कई दफ़ा हुआ ना मुझ पे, मेरे ऑफिसर्स ने भी किया। मैं ये कहता हूँ कि जब मेरी ग्रिप हो जाती है मेरे यूनिट पे, आपको एक यूनिट दिया गया है कि इसको संभालें, इसके लॉ एंड ऑर्डर के आप जिम्मेदार हैं, दैट इज़ व्हाट SHO इज़ डूइंग। तो उसमें ये है कि अगर मैं अपना थाना कंट्रोल कर लेता हूँ अल्लाह के फजल से, एमरजेंसी तो कभी भी हो सकती है, तो उसके बाद फिर मेरा जो टाइम बचता है, अगर मैं थाना ही कंट्रोल नहीं कर रहा तो फिर तो मैं पीछे भागता रहूँगा मुलजमों के। तो मैं आपको बताता हूँ कि गोजरे सिटी में SHO था, गोजरा बड़ा हेक्टिक थाना है। तो आप यकीन करेंगे कि मैं वहाँ कोई 1 साल SHO रहा हूँ और हर रोज़ मैं क्रिकेट खेलने जो है ना ग्राउंड में जाता हूँ। तो कैसे कोई SHO जो है वो क्रिकेट खेल सकता है शाम को जब तक उसका थाना पुरस्कून ना हो। अच्छा सर, आप पुलिस सर्विस के अंदर ज़ाहिर बात है अफसरों के सामने बुलाते भी रहती हैं, जवाब तलबी भी होती है, और वो बात की बात है कि बात निकले या ना निकले। ऐसा नहीं भी हुआ कि अफसर ने बुलाया, उसने कहा यार तुम तो कहानियाँ लिखते रहती हो, तुम क्या कर रहे हो? ये एक दफ़ा नहीं हुआ। एहसान तोफैल साहब मेरे इधर RPO थे, ये एतराज़ भी RPO थे, तो मेरी टांग उस वक्त पैरालाइज, उस बंदे ने नहीं मुझसे पूछा कि तुम्हारी टांग को क्या हुआ, मैंने उन्हें बताया कि मुझे फायर लगा इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तो उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। तो मैंने कुछ किताबें थी वो मैंने दी, ये क्या है, मैंने कहा सारी कुछ किताबें, ये बीमारी की हालत में मैंने पैरालाइज हो गया तो मैंने ली। उसने कहा बस आप यही काम कर। तो फिर मैं छोड़ के नहीं आया था उसके पास किताबें, मैं अपनी लेके आया था। मैंने जेहन में सोचा था कि ये डिज़र्व ही नहीं करता बंदा कि इसको किताबें दी। सर सर्विस के दौरान, क्योंकि पुलिस की सर्विस है, क्रिमिनल के साथ मुकाबला, थाना कंट्रोल करना, पुलिस मुकाबला में कितने बंदे मारे? अच्छा चलें सारे नहीं बताता, को 12-13 तो मैंने गोजरे सिटी में ही मारे थे, बाकी छोड़े 12 बंदे और 44 किताबें। नहीं, एक थाने का बताया मैंने। अच्छा, एक थाने। तो ये जो 12 थे तो इन्हीं की वजह से सुकून हुआ था ना। देखे ना, अगर ये मरे, एनकाउंटर हुए, ये दफ़ा हुए इस दुनिया से, तो उसके बाद फिर वारदातें तो और होनी चाहिए थी ना, फिर वारदात क्यों रुकी? दैट मीन्स कि ये सही बंदे थे। दैट मीन्स कि उसी के बाद मुझे ये टाइम मिला कि मैं जाके क्रिकेट भी खेली मैंने। अच्छा सर, एक हम बच्चों के अदब पे आपका काम है, हम बड़े डाइजेस्ट में भी देखते हैं, ख़ास तौर पे जो क्राइम फिक्शन हमारे यहाँ डाइजेस्ट में आता है, तो मुझे बड़ी दफ़ा महसूस हुआ कि ट्रांसलेट कहानी की गई है और उसके अंदर मार्टी का नाम लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई इसी तरह लड़की का नाम है, बाकी सारी मतलब उन्होंने बना दी, क्राइम सीन भी बन गया सब कुछ,
और नामों की वजह से ये आई, तो आप बच्चों के लिए ट्रांसलेट भी करती हैं स्टोरीज मुख्तलिफ ममालिक की, इंग्लिश अदब की, उसके अलावा दूसरे, तो क्या आपके ख्याल में किस तरह से अच्छा, मैं आपकी पहली जो बड़ों के अदब की बात आपने की, इसी वजह से जासूसी अदब जो है पॉपुलर नहीं होता, इसी वजह से हम उसको ओन नहीं करते। ठीक है, अब वो देखें हमारे पंजाब में रिचुअल है ना जी, जब तक शराब पी के शोर नहीं मचाना तब तक किसी को पता ही नहीं चलता कि यार मैंने शराब पी। बात यह है कि बुरी चीज़ है ना, इसको छुपाना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि शराब किसी ने पी है वो चुप करके घर बैठ जाए और किसी को पता ना लगने दे। तो हम क्या करते हैं, हमारा रिचुअल जब तक मोहल्ले में जाके 5-7 गालियाँ ना, बेसिकली हम सारे जो हैं वो इंट्रोवर्ट हैं, हम वो बात बाहर कर नहीं सकते जो हम करना चाहते हैं। तो फिर वो शराब का सारा, किसी और आर्टिफिशियल चीज़ का सारा कि जी अच्छा जी अगर मैं पकड़ा गया, ठीक है ना, कान से किसी ने पकड़े, फिर कहूँगा यार मैंने तो शराब पी। ठीक है, तो ये मार्टी शार्टी जो है ना, इसमें एतराज़ फिर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जब किसी ने कहा कि ये तो तर्जमा है, ठीक है ना जी, तो कहा नहीं ये तो मेरी है। तो जब किसी ने कहा कि यार ये बड़ी बेहुदा कहानी कैसे ले, तो कह दिया जी तर्जमा। ठीक है ना जी, मेरा जो है देखें, मेरा तो सिंपल है। आप दूसरे राइटर से मुझे इसलिए डिफरेंट कर सकते हैं, मैंने सारी दुनिया पाँव से देखी। मैं कौन सा घर बैठ के मैं मुल्क शाम की कहानी लिख रहा हूँ, मैंने सारा यूरोप देखा है, सारा एशिया देखा है, सारा अफ्रीका देखा है। तो मुझे हैबिटेट का पता है, मैंने ट्रैवल किया हुआ है, मुझे पता है कि बच्चे ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं। मैं अटलांटिक ओशन की कहानी स्टार्ट करता हूँ तो वो इंडियन ओशन में ख़त्म, तो उसमें मुझे पता है एक व्हेल मछली जो है, मतलब वो जो है ना जी, वो ट्रैवल करती है, तो उसके गर्मी तो नहीं लग जानी उसको। अगर उसने अटलांटिक ओशन से ट्रांसफ़र होना है इंडियन ओशन में, तो उसे क्या पता कि मैं एक समुंदर से दूसरे समुंदर। तो वो जो ट्रैवलिंग है उसमें पोलर बेयर हैं, उनकी हैबिटेट कहाँ से स्टार्ट हुई, वो बेसिकली तो वो बेयर ही हैं। तो इन कहानियों में इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। दूसरा ये कि मुल्कों की आपको शनाख्त पता लगता है, वेनेजुएला की कहानी, ठीक है जी, उसके बाद जो है ना जी लाइबेरिया की कहानी। ऐसे ममालिक जिनको बच्चे नहीं जानते, आप उनके हैबिटेट के बारे में, उनकी जो वहाँ की है आबो हवा है, वहाँ के एनिमल्स हैं उनको। अब हम 80 बच्चों से पूछेंगे कि लाइबेरिया का है, वो कहेंगे यूरोप में, साइबेरिया का भाई होगा, ठीक है ना जी। तो बेसिकली वो अफ्रीकन कंट्री, ठीक है ना जी, उसमें ये है कि वो जंगल है, ठीक है ना जी, और उस पर हुकूमत जो है वो भी अंग्रेज़ों की। तो उसमें ये है कि फिर वो एक अफ्रीकी बच्चा जो है, वो एक अंग्रेज़ बच्चे के साथ उसका एक्सपीडिशन है। वो वहाँ के जो हैं ये बारासिंगे, ठीक है ना, एंटीलोप, तो वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे गाते हैं। तो वो सारे मिसमराइज होते हैं बच्चे कि यार ये गाने वाला बारासिंगा है। तो वो जो पाउचर्स हैं वो एक दफ़ा वो उनका जंगल के दरमियान में उनका वो कैंप होता है, तो वो एंटीलोप उनका गुम हो जाता है बच्चों का, जिससे वो इंस्पायर होते हैं। तो फिर ये जंगल में जाते हैं उस कैंप तक। अब जब कैंप तक जाते हैं तो मेरी मौज लग गई। मैंने अफ्रीका के सारे जानवरों का बताया, कौन से अज़दा होते हैं वहाँ, कौन से गिरगिट कैमेलियन कितने हैं, लिजर्ड्स कितने हैं, मतलब वो सारा बताया। वो ट्रैवलिंग में सारा अफ्रीका मैंने दे दी, ठीक है जी। उसके बाद वो पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं, दे डोंट सिंग, वो बोलते ही ऐसे ऊंचा मुँह करके, तो वैसे लगता है जैसे मतलब। तो इतनी छोटी सी कहानी में आपको ट्रैवल के ज़रिए आपने बच्चों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन सरफेस। अच्छा सर, आपका क्या ख्याल है, उमरू यार, टार्जन, ये दौर ख़त्म हो गया या मौजूद है? सर जी, उमरो यार की दास्तान जो थी ना जी, अरबिक और ईरानियन वार पे थी। ये बेसिकली उमर बिन उमैया ज़मीरी, ठीक है ना जी, ये मेन था फोकस। इनकी मिथ थी, जैसे अमीर हमजा, ठीक है ना जी, हम पोर्ट्रेट तो करते हैं ना जी, वही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को या सहाबा इकराम को। लेकिन जिन बड़े लिखने वालों ने शुरू में ये स्टोरीज़ बनाई और मुँह बोली कहानियाँ चलती रहीं, उन्होंने इनकी इज़्ज़त तौक़ीर का बहुत ख्याल। ये बेसिकली प्री इस्लामिक कल्चर है, उसमें ये बड़े बड़े पहलवान थे, ठीक है ना जी, बड़े वॉरियर थे, तो मल्टीपल वॉर्स थी, ठीक है ना जी, उसमें ये जो करते थे ये कहानियाँ हुआ। तो दास्तान तो वही है जो अरबिक दास्तान है। अब उसमें आप इख्तरा करें और अमीर हमजा तो खैर छोड़ें, उमरो यार और कुत्ते का बच्चा लिख दें, तो अब ये कोई उसको एक्सपेंड तो नहीं कर रहे, ठीक है ना जी। अब मदर कलीम ने, डिबेटेबल बात है, इब्ने सफ़ी साहब ने बहुत अच्छा लिखा, ठीक है ना, इमरान सीरीज़ तो नहीं की थी, लेकिन उसको सेलेबल किया मदर कलीम, ठीक है ना, जैसा भी लिखा, लेकिन किताबें तो बिकी। अब या तो आप लिखें तो फिर मदर कलीम से ज़्यादा अच्छा लिखें, ठीक है ना, इब्ने सफ़ी की जो सक्सेशन है उसको आगे लेके चले। तो अगर आप बैठे हुए हैं, किताब आपकी बिक को नहीं रही,
आप मतलब इमरान सीरीज़ लिखने की हो सकता है आपको, आप 99 साल का फौत हो जाए तो उससे एक दिन पहले आपका कोई नावल क्लिक भी कर जाए तो आपने बेड़ा गर्क तो कर दिया ना अपनी फैमिली का। तो इससे बाहर निकलें। देखिए पाकिस्तान में हमारा सबसे बड़ा अलमिया जो है, आप मुझे बताएं कौन सा हीरो हमने प्रोड्यूस किया। इतने राइटर गुजरे हैं। अर्जन जो था वो सुपरमैन था, ठीक है जी। अनोशा इंडिया का था, ठीक है जी। हातम ताई अरेबिक था, अमीर हमदा अरेबिक था, उमरू अरेबिक था, ठीक है जी। मुझे किसी एक हीरो का बताएं जो पाकिस्तानी हीरो। अच्छा सर, ये काफ़ी डिबेटेबल बात है कि हमारे पास जितने करेक्टर हैं वो बाहर से हैं। हाँ जी। अच्छा, हमारे अदीबों ने अपने मकामी करेक्टर क्यों नहीं डेवलप कर सकते? अच्छा, अब एक और जंग शुरू हुई है ना जी। हम जी इस्लामी अपने जो हीरो हैं, देखें आप इस्लामिक स्टोरीज़ को स्टोरी नहीं कर सकते आप, वो इंसिडेंट हैं, वो वकूएँ हैं, वो हो गए, उनमें आप ना एग्जैजुरेट कर सकते हैं ना उसमें कम कर सकते हैं। वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब है काम। अब हम हज़रत खौला बिन ज़रार, अब उनका जो वाक़या था, जो अपने भाई को वो मतलब जो है ना जी छुड़ाती हैं रोमी फ़ौज से, ठीक है ना जी। अब वो अरब की बेटी एक नावल है फिरोज संस का, ठीक है जी। तो उसमें ना तो कुछ बढ़ाया उन्होंने ना कम किया। वो एक, मैं हैरान हूँ कि इस्लामी कहानियाँ कैसे हो सकती, कहानी तो हो ही नहीं सकती, मिथ नहीं हो सकती कोई भी, ठीक है ना जी। आप जो इंसिडेंट लिखते हैं उसको इंसिडेंट के तौर पे लिखते हैं। तो अब एक राइटर है हमारे, उनकी 143 किताबें छप गई हैं, ठीक है जी। तो मैं उनके पास बैठा था तो मेरी एक किताब छपी थी उसमें, वो खड़े हो गए अपना तारुफ कराया, उनकी जी 143 किताबें मेरी। तो मैं चुप करके वो जो एक किताब थी हाफ साहब की वजह से जो छपी थी वो तज़ीनर से थी, उसको मैंने छुपा लिया। मैंने कहा यार इतने बड़े राइटर 143 किताबों के, तो मेरे पास एक किताब है। तो बाद में मुझे पता चला कि वो जो फिरोज संस की हमारी वो पॉकेट सीरीज़ थी, तो उसमें से 3-3 सफ़े लेके तो मुस्लिम वॉरियर्स पे और मुस्लिम मशहूर लोगों पे इन्होंने वो स्कूल में भेजने के लिए जो है ना वो पॉम्फलेट छापे। अच्छा सर, असल में मेरी डिस्कशन ये है आपसे कि आपके इस पर नॉलेज बहुत ज़्यादा है। हमने अब तक बाहर के नाम तक बाहर के अडॉप्ट किया, मतलब हातिम ताई एक हकीकी करेक्टर था, हाँ जी, ठीक है, उसके हमें मुख्तलिफ मिलती हैं, हदीस में भी जिक्र मिलता है। अच्छा, अब मेरा ये है कि हमारे राइटर्स ने मसलन हम जिस तरह कह लें मुज़फ़्फ़र चलाकिया, शुएब फराडिया, मौलवी फ़हीम, हमारे ज़ाती करेक्टर क्यों नहीं अभी तक हमारे अदब में आ सके? जिन लोगों का आपने नाम लिया है, जिन करेक्टर वो माइंड कर देते हैं अगर उन पे इस तरह लिखे कोई भी मतलब इनसे एग्जांपल है इनसे अच्छा जी, एक मिनट, ये मौजूद ना एक जैसे ही चल रहा है अभी, हाँ जी, मतलब इसमें चेंज करें तो ये तो बेसिकली ना ये आपका किताबों से ताल्लुक, हाँ जी, तारफ हाँ जी, और उस सिलसिले में बात हो रही है अब तक। मेरी अब नई बात ये है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स हाँ जी, ये चल रहा है, हाँ जी। तो क्या यहाँ कोई इस लेवल की तहरीर नहीं लिखी गई या लिखी नहीं जा सकती कि निसाब की किताबों में गुड बाय मिस्टर चिप्स या इस्माइल मेरठी की नज़में, मतलब 150 साल पुराना हाँ जी, वाक़या है इस्माइल मेरठी साहब, और बाकी कल मैंने नई 9th की जो किताब आई कल मैंने इत्तफाकन वो देखी है, हाँ जी। तो इसमें भी वही पुराने शायर, क्या उसके बाद कोई नया शायर पैदा नहीं हुआ अभी एक वैसे या वो क्या है, या हाँ, कंपैरिजन हो नहीं सकता आप समझते हैं? नहीं, एक बारिश का कतरा था ज़ियाउल मोहसिन की एक नज़म जो है वो सिलेक्ट हुई थी। इसके अलावा आप मिस्टर चिप्स निकालेंगे टेक्स्ट बुक बोर्ड से तो मिस्टर चिप्स का कोई ना कोई रिश्तेदार वहाँ बैठा हुआ है जो उसी को प्रमोट करता है। इसी तरह कोई उसकी आल औलाद से पीछे आ रहा है इस्माइल मीठी की, हर बंदा इस्माइल मीठी बनने की कोशिश करता है, ठीक है। अब बहुत से आपको याद है रफ़ीक अहमद खान, ठीक है ना जी। अच्छा जी, उसके बाद आपको खालिद बज़मी, फिर ज़ियाउल हसन ज़िया, फिरोज संस की तरफ से तालीम और तरबियत में कितना लिखा उन्होंने, ठीक है ना जी। तो बहुत से हमारे शायर ऐसे हैं। फिर कराची में मतलब अभी अहमद आतिफ सिद्दीकी वो बहुत अच्छा नज़म लिख रहे हैं। बच्चे 2-3 आए हैं, एक शाज क्या ना, सदीक शाज उसका नाम है, और इसी तरह अयूब जो है वो भावलपुर का है। तो मतलब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नज़में बहुत अच्छी लिख रहे हैं। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि वो लकीर का फ़कीर होने, कोई ना तो ओन करता है ना कोई पढ़ता है। हर बंदे ने अपनी रोटी रोज़ी के लिए तनख्वाह लगाई हुई, ना कोई काम करता ना काम, यही है। गुड बाय मिस्टर चिप्स ही चलता रहेगा ऑफ कोर्स जब तक गुड बाई मिस्टर चिप्स के रिश्तेदार वहाँ बैठे हैं तब तक यही रहना है। उन्होंने अपने रिश्तेदार को ही प्रमोट करना। अभी तक वही जो हैट वाले हैं ना जी, मतलब नीचे शलवार कमीज पहन के ऊपर हैट ज़रूर पहनना, वही मतलब
अभी तक या तो फिर इससे ये भी सर इसकी या तो वजह हो सकती है ना कि हम कोई अच्छा अदब तख्लीक ही नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, कर रहे हैं। मेरी एग्जांपल है ना जी, आप देखें ना, हु इज़ प्रमोटिंग मी, ठीक है ना जी, आप आए हैं ना जी, ठीक है ना जी, सारी तरफ टांगें खींची गई। अगर आप लोग भी ना होते, देखें बदर के साथ मैं कितनी बातें कर लेता था। हाफ़ साहब मेरे 1976 के, तो आपसे, आप एडिटर थे मेरे, तो अभी भी हैं, जब मुख्तारे में जब थे, तो आपसे कितनी बातें मैं करता था। तो कोशिश करते हैं। आप देखें मेरा तो, मैंने जो फेम लेना था या नोटोरियस होना, वो तो मेरा महकमा रोटी रोज़ी अलहदा थी। तो वहाँ से एक बंदा उठ के तो बच्चों के अदब की इतनी खिदमत करे और सारा, और उस पर ये हो जी कि ये तो तर्जुमा करता है। भाई मैं प्रोफेशनल तो नहीं लिख रहा, मैं अगर तर्जुमा भी करता हूँ तो कुछ पैसे दे ही रहा हूँ। करोड़ों रुपया आपने ये लाइब्रेरी में कितने पैसे लगे होंगे इन किताबों के इकट्ठे कर। आपको पता है कि हमेशा मैं हाथ से लिखता हूँ, मेरी डाक आपको हमेशा जो है वो उससे TCS से ही मिली है, ठीक है ना। तो वो सारे पैसे मेरे बच्चों के पैसे थे ना, तो मैंने पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए मतलब खर्च किए। लेकिन मेरी टांग हमेशा खींची गई कि जी आप तर्जुमा करते हैं, जी आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। बेसिकली अब उन लोगों को बाज भी आना चाहिए, क्योंकि किताबें तो फिर मेरी सेल हुई सारी, अवार्ड मैंने लिया, ठीक है ना। 45 किताबें, कोई जो अदारा है बड़ा अदारा, वो जब तक उसको ये इत्मीनान ना हो कि जी आप उसकी किताब जो वो छाप रहे हैं और आपको पैसे भी दे रहे हैं तो वो बिक भी जाएगी, तो इस तरह की किताबें वो कैसे छाप सकते हैं। मेरी तस्वीर ऊपर दे के तो प्रमोट कर रहे हैं अपनी किताब। किस बच्चों के राइटर की तस्वीर उसकी किताब पे, ये मेरी कहानियों की किताब है, तो उन्होंने किताब बेचने के लिए अब ये तस्वीर चेंज कर ली, इसके पिक्सल फट गए, लेकिन मैंने वो दोबारा भेजी तो इस जगह पे मेरी पिक्चर आनी। तो आप मुझे बताएं कोई और राइटर का नाम बताएं जो इतनी अच्छी किताब पे उसकी तस्वीर। अच्छा सर, आपने बहुत से अवार्ड हासिल किए हैं, UBL अवार्ड भी मिला है, तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है लिखारी का कि अवार्ड मिले उसे? UBL क्राइटेरिया तो मेरे नज़दीक तो यही था। मैं तो बड़ा ऑनेस्टली मतलब जो है ना जी इस बात पे बिलीव करता था कि जो जजेस के नाम थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। तो इस दफ़ा मतलब थोड़ी सी हैरत हुई कि मेरी 6 किताबें थी, उनमें बड़ी अच्छी जिनको मैं समझता था कि जी इनको नॉमिनेट होना चाहिए, लेकिन मेरी वो किताब नॉमिनेट हुई जो शायद मैं समझता था कि ये सबसे स्लो है। और अवार्ड जो था वो डेफिनेटली एक ऐसी किताब को दिया गया। तस्नीम जाफरी साहबा जो हैं वो तो डेफिनेटली मतलब उनकी तो किताब आई भी मार्केट में और देखी भी हमने। शाह मिर्ज़ा साहब का अवार्ड जो था वो किताब मैंने तो कभी देखी नहीं बाजार ना, मुझे कभी नजर किस किताब पे उनको दिया गया मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन क्योंकि मेरा अवार्ड है, ज़रा मैं आज उनको कहूँगा जी कि उनको फेक अवार्ड मिला तो कल वो भी कहेंगे जी तुम्हें भी फेक नहीं। इसका मतलब है कि सिर्फ ताल्लुकदारी पे या सिफारिश पे अवार्ड मिल रहे हैं बच्चों के? नहीं, मैं पहले तो बहुत खुश था, ये नहीं कि मुझे अवार्ड मिला था, नोबडी न्यू मी, तो इसके बावजूद मेरी किताब रिकमेंड हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये भी देखना चाहिए जजेस को कि ये किताब डाउनटाउन आई है बिकने के लिए मार्केट में या किसी ने पढ़ी है। अगर आपकी किताब मार्केट में नहीं आई तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात है। मार्केट में आई नहीं किताब। यहाँ बहुत से राइटर हैं जो फैसलाबाद में, उन्होंने वो रखी हुई हैं किताबें। सर सैयद पे एक 25 किताबें वो छपवा लेते हैं, ये अलामा इकबाल पे 10 छपवा ली। जब इनके डेज आते हैं तो ये फिर वो प्रेजेंट करते हैं अवार्ड्स के लिए, तो ये तो चलता है। आपको तो लिखने का जुनून है। हाँ जी। लेकिन एक आम लिखारी जो शुरू होता है, जुनून नहीं होता, उसका शौक़ होता है, वो लिखता है, लेकिन उसको जब उसको उसका मेहनताना नहीं मिलता, अवार्ड नहीं मिलता, तो वो तो इससे दिल बर्दाश्त हो जाता है। जो बच्चों का अदब है ना जी, उसमें तो अवार्ड है ही नहीं पाकिस्तान में कोई। सिंपल बात है, जिसने आना है ना जी वो अपने शौक़ से ही आना है, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें शौक़ अगर आपका वो रोटी रोज़ी भी बन जाए तो ये अल्लाह की देन है। जैसे वसीम अकरम की एग्जांपल है कि वो गलियों में खेलता, किस्मत होगी उसकी। तो अगर तो आप एक्सेल करते हैं तो फिर रखें इसको, अगर आप एक्सेल नहीं करते तो आफ्टर सम टाइम जब आप देखते हैं कि मुझे पसंद नहीं किया जा रहा तो फिर चुप कर दें, बस आप किसी और किसी और जगह पे तबाह समझ। अच्छा सर, बच्चों के अदब में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अवार्ड देती है, जैसे सैयद नज़रदादी अवार्ड, इस्माइल मेंटरी अवार्ड। तो आहिस्ता आहिस्ता पहले एक वक्त जब हम लोग आए थे लिखने की फील्ड में तो ये कहा जाता था कि बड़ों के अदब पे शायद अवार्ड इतने नहीं है, लेकिन बच्चों के अदब पे बहुत ज़्यादा अवार्ड थे, बहुत हौसला अफजाई होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें भी दब गई हैं या ख़त्म हो गई हैं। अगर ख़त्म नहीं हुई तो कम से कम हमें उसका इल्म नहीं हो पाता, तो इसकी क्या वजह बनी? आगे मैं समझता हूँ कि सोशल सर्विस के तौर पे दिया जाता था अवार्ड के जी, इसने बच्चों को मतलब जो है ना जी वो पढ़ाया है या अगली नस्ल को तैयार करने की कोशिश की है। तो अभी भी बहुत से लोग इस बात पे हैं, लेकिन जो अवार्ड देने वाले हैं
बेसिकली मैं समझता हूँ कि अवार्ड अब तकरीबात जो हैं अवार्ड्स की वो रिलेशन बनाने की ज़्यादा है। ये मेरे लिए हैरत वाली बात था, आप भी हैरान थे कि वो बड़ी अच्छी पार्टी हुई हमारी मुल्तान वाली, अली इमरान मुमताज़ ने वो जो तन तनहा किया। अदरवाइज़ ये कि आम तौर पे आप देखें तो आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो अब तो पब्लिक रिलेशनिंग जो है, लोग जिन्होंने अवार्ड देने हैं वो बेसिकली अपने, या फिर ये कि किताबें मंगवा ली, 4-4 5-5 कॉपीज़ मंगवाई, वो ढेर लगा लिया, वो बाद में आप सेल आउट भी कर सकते, या उनसे आप खुद रिलेशन अपने कायम कर सकते। किसी को किताब तोहफे में दे दी तो 5-5 किताबें दे के अपने ख़र्च पे जाके एक वो लेना, शील्ड लेनी, या इस तरह बहुत से लोग जाते भी नहीं और काज भी कोई नहीं होता। तो ज़्यादा तो यही होता है कि अपने रिलेशन। अच्छा सर, आप हमने लाइब्रेरी देखी माशाल्लाह से, बहुत पुरानी किताबें भी इसमें शामिल हैं और बड़े क्लासिक, बच्चों का अदब का क्लासिक कहा जा सकता है और अब मार्केट में नहीं है। तो आपको कभी ये ख्याल आया या आपको नहीं लगता कि इन किताबों को दोबारा पब्लिश होना चाहिए, जो ना मार्केट में है ना कहीं और? तो भैया मैं तो बहुत बड़ा विलन हूँ। असद भाई वो पकड़े ना जी किताबें, ये 10 पहली निकालें, ये नहीं ऊपर वाली, ऊपर ये वाली, हाँ जी निकाल लें, 3-4 निकाल लें। भैया मैं तो इसीलिए विलन हूँ। ये देखें ना, ये आपके ये पुराने क्लासिक नावल्स हैं जिनको मैंने इस हालत में ये दोबारा प्रिंट करवाया। देखें ये किताबें सिर्फ मेरे पास थी, अगर मैंने इंपॉर्टेंट रहना होता तो ये डायनासोर्स के अंडे मैं अपने पास ही रखता। मैंने तो इनको फैला दिया है सारी तरफ। ये सारे फ्रोसन्स के नावल्स हैं जो हमारे दौर में थे, इनको क्योंकि ढूंढा मैंने तो ये मेरी ड्यूटी बनती थी कि इनको दोबारा पब्लिश भी मैं ही करूँ। ये मकतबा जदीद वालों ने मेरी मदद की, उन्होंने ये इतनी खूबसूरत आलम, ये उससे पहले बंद हो गए थे, यानी खत्म हो गए बिल्कुल किसी के पास। अब साहब ये देखिए उल्लू के घोंसले से बहुत सी किताबें मैं देख और रुस्तम खान और शायद तारीख चोरों का राज, 20 साल से नहीं छपी। चुमाई का मंदिर, काला नाग, सारे नावल दोबारा, सोने का बुत, मुझे याद है साहब अंबर मारिया नाग बड़ी 1916 दोबारा हो जी, 1916 की साल से नहीं छपी। अच्छा, दोबारा उस तरह की चीज़ देखने में नहीं आई, जैसे अंबर नाग मारिया हो गया, इंस्पेक्टर जमशेद के कारनामे वो इस टाइप की होती थी, वो हम पढ़ते थे। इंस्पेक्टर जमशेद के कारनामे तो अभी भी पुरानी किताबें ही मार्केट में अवेलेबल। हाँ जी, नहीं मैंने कहा अंबर नाग मारिया सीरीज़ की ये इकरा वाले जो हैं रीडिंग्स वाले, इन्होंने इसके 20 हिस्से छापे थे, उसके बाद फिर इन्होंने बंद कर दी। बेसिकली हम अभी भी, हमारी उम्र के लोग समझते हैं कि ये किताबें बड़ी सेलेबल हैं, लेकिन बच्चे इससे आगे बढ़ गए हुए हैं। वो जो गैप आया ना दरमियान में, उससे बच्चे आगे बढ़ गए। या तो उनको बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन में किताबें दें, जैसे ये अब किताबें छपी तो बच्चे मोटिवेट हैं। हम पुराने टाइटल्स के साथ उसी कागज़ के साथ करेंगे तो वो हमारी याद है, वो अपने बच्चों के लिए वो एलियंस है। में 50 पैसे और 1 रुपए की हाँ जी, हाँ जी, हाँ छप जी, जाती थी, अब तो बच्चे जी उसको बिल्कुल, हाँ जी। नहीं अहमियत अच्छा सर, आप किताबें प्रिंट तो कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं और आगे भी आपके बहुत से प्रोजेक्ट, लेकिन क्या इसको आप वॉइस पे भी ला रहे हैं? मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको पता है, वहाँ मैं स्टोरी टेलिंग करता रहता हूँ। तो ये नवाज अंसारी साहब मेरे कैमरामैन हैं, ठीक, तो करते हैं मतलब। हाँ, अब क्योंकि ये वो इब्ने आसमी छापी, अच्छी किताब छापी है बदल, ये नावल छापा है उन्होंने, नीले पहाड़ों का राज। जो आपने एक पुराना सिलसिला बच्चों का हाँ जी। और एक अब के बच्चों का नया जो तकलीफ हो रहा है, उसमें फ़र्क क्या? फ़र्क वो क्लासिक था, वो बेसिकली ज़्यादा 80-90% तो तर्जमे ही थे। तो ज़्यादा वो जितना कंटेम्प्रेरी अदब आता था इंटरनेशनली, तो वो फिर जो हमारे इधर के राइटर थे जो तबादार लिखते थे, जैसे जबार तुकीर थे या ये थे अजीज़ असरी थे, उनको भी फिर उस स्टैंडर्ड का लिखना पड़ता था। अब देखें ना नज़ीर अम्बालवी साहब, मैं समझता हूँ नंबर 1, ठीक है जी। तो नंबर 1 स्लॉट के ऊपर तो कोई स्लॉट नहीं ना, ऊपर तो फिर अल्लाह मियाँ, तो ऊपर से आप नीचे आ सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो मैं कई दफ़ा उनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं क्योंकि तर्जमा करता हूँ तो ज़रा आपका कंपटीशन अब मेरे साथ है। पाकिस्तान में तो आप नंबर 1 हो गए, उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनली करता हूँ ना, आप तो पढ़ते नहीं। मुझे तो खैर नहीं मिला। हमें तो जो पहलवान थे वो तो आपको पता है, वो दास्तान मीर हमज़ा में ज़्यादा मिलते थे, आदि पहलवान और लंदूर पहलवान और सारे जो थे। तो बाकी वो कोई नातवां किस्म का पहलवान हो तो मतलब उस पर बात की जा सकती है, अदरवाइज ऑडिटर बन गया। पहलवान तो मतलब कोई नहीं। अच्छा, रुस्तम सर, अभी एक सीरीज़ एक दौर में चली थी, ईरान की गालबन वो थी, उस पर भी काफ़ी काम हुआ। तो यहाँ पे भी हमारे अच्छे, मतलब देखें तो अच्छे पहलवान गुजरे हैं, जैसे झारा हो गया, नासर बोलू, और इस तरह जो रुस्तम हिंद वगैरह हमारे यहाँ रहे हैं, तो उन पे क्यों नहीं लिखते लोग? सर वो उन्होंने बेसिकली वो कोई वॉरियर नहीं थे,
वो पहलवान ही थे, उनकी दास्तान लिखी जा सकती, बायोग्राफी, इसके अलावा तो उनका कोई कारनामा नहीं। सर, और वैसे भी जो हाँ जिन जी। पहलवानों की आप बात कर रहे हैं हाँ ना, जी, जी जी। इनका आप क्या लिखेंगे? इनका बदर साहब ये लिखेंगे कि वो एक बकरा खा जाते थे हाँ जी, और काम कोई नहीं, वो लेटे रहते। अकरम बोलू जो है वो मतलब लेटा रहता था। अकबर बादशाह खुद जो है वो लाहौर शाही किला जो है उसका रेडियस तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर बनता है, तो वो दो ऐसे इंसानों को पकड़ के तो वो उस पर 2 चक्कर लगाता था डेली सुबह। तो ये हमारे पहलवान जो थे वो एक चक्कर लगा के थक जाते थे और फिर वो मुकम्मल गज़ा जो है ना एक बकरे की शक्ल में वो खाते थे। और जब मैं समझता हूँ जब बकरा खा लेना आप, फिर आपको नींद आती है सिर्फ, फिर आप कुश्ती नहीं कर सकते, फिर आप पहलवान, वैसे नाम क्या है पहलवान जी की याद है, तो वो मतलब वो शक्ल नहीं, हम क्या उनका एक बच्चों को वो देने के लिए फिजिकल सॉरी बात आपकी फिजिकल काट रहा देने हूँ। के लिए लिख सकते हैं कि वो बच्चे वो बचपन में एक्सरसाइज करते थे और अपना साथ पढ़ते नहीं, थे नहीं, या जो उसकी ना करते। मैं आपको बात बताता हूँ, जिस तरह अवार्ड की बात इन्होंने की है, मैं खुद वो कुश्तियां देखता रहा हूँ लाहौर के अखाड़े में। बाद में वो अखाड़ा इसीलिए उसको मतलब वो कर दिया गया कि वहाँ वो अखाड़ा नहीं रहा पहलवानों का, वो जुआ खाना बन गया था। वहाँ कुश्ती होती थी जब, तो जिस पहलवान को जिताना होता था वो थोड़ा रोला शोला पड़ता था वहाँ पे, और जो हार रहा होता था ना उसको एक आध ठोकर मार देते थे, वो मतलब शेर हो जाता था। और वो जो जीत रहा होता था उसको किसी हिसाब से ऐसा डिग्रेड करते थे कि वो कुश्ती जो है वो इधर से इधर पलट जाता था सारा नक्शा। तो वो उसमें बेईमानी का ही जिक्र हो सकता फिर उन पहलवानों अच्छा का। सर, आप नहीं, राजा दाहिर भी बादशाह हमारा की एक हीरो रहा है जिसको हम हीरो मानने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि वो हिंदू था, तो उनके ऊपर भी लिखी जा सकती है वो तो बच्चों के लिखी लिए। है ना जी, वो हमारी यूनुस हसरत साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने बड़ी कंप्लीट दास्तान लिखी, अनोशा सीरीज़ जो है, तो वो मैं आपको दूंगा। उसमें तो वो पानीपत की जंगें और सारा जो है ना जी, वो सारी इंडियन मिथ्स जो है वो उस पे बड़ा सिखों को भी हमने हाँ जी, हाँ जी, विलन मरहट्टे वगैरह। सिखों को भी हमने विलन बना के पेश किया हाँ है, जी। हालांकि विलन नहीं थे वो, हमने विलन, हमारी किताब माशरतिया लूम में विलन बनाया गया उनको। सिख विलन बने हैं 1947 में, और जब ये सारे फसादात हुए तो उसके बाद जो लोग हैं, जितने भी एक हमारी एक पूरी नस्ल आई जो सिखों के हाथों जिनके प्यारे शहीद हुए थे, तो वहाँ से सिख विलन के तौर पे आ गए। अरे सर, मैं बात कर रहा था, बात क्योंकि बच्चों के अदब से शुरू हुई और तारीख पे चली गई। आपने अकबर बादशाह का भी नाम जिक्र किया, तो आपका क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मुग़ल बादशाह एक पूरा दौर उनका था, तो कोई मुग़ल बादशाह हमारा ऐसा जिसने उम्रा या हज किया हो? मेरा ख्याल है औरंगजेब ने शायद किया वो। सर, मैंने इस पे थोड़ी सी की थी, तो मुझे ये बताया गया था कि किसी ने भी नहीं किया। उसकी वजह है कि वो डरते थे अगर हम हज के लिए गए तो पीछे से तख्त चले जाएगा। और उस वक्त तो हज भी 6 महीनों का था। हाँ, ये बात- लंबा जाना, काफिले जाते थे। बैरी जहाज पे तो तो जिस जाना भाई नहीं की आपने। आंखों में सलाई फेर दी जाती थी कि ताकि वो बादशाह ना बन सके, उसको नबीना कर दे, उसको हज पे भेज दिया जाता था, और वो फिर उसकी वापसी नहीं होती। बस वो बादशाहों का तो यही सिलसिला था ना। अब सल्तनत उस्मानिया की आजकल हम बात करते हैं, एक रात में 19 भाइयों को कत्ल करवाया गया था। और आपने जिक्र किया जिनका, उन्होंने तो कोई नमाज भी नहीं छोड़ी थी और भाई भी नहीं छोड़ा था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ऐसे ही है ना, मतलब जो है ना जी, एक बादशाह थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने सालों में एज एस जो इतनी किताबें और इतने बंदे एनकाउंटर्स जो सवाल उधर ही आ गया। सर, अच्छा सर, एक और चीज़ दरमियान में आपकी बातों के दरमियान रह गई। वो जो हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तानी कल्चर के ऊपर हमारा बच्चों का कोई हीरो, तो मैंने इसलिए है कि मैंने अनायतुल्लाह मरहूम पे रिसर्च वर्क किया था काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी। तो पाकिस्तान में जिन्होंने मुतारफ़ करवाया था जासूसी करैक्टर जो हमारे कल्चर के साथ था, मतलब वो इंस्पेक्टर जो खोजी की मदद लेता है, वो इंस्पेक्टर जो गांव देहात में है, और वो इंस्पेक्टर जिसके कत्ल और इधर के सारे कल्चर पोटोहारी कल्चर के अंदर है, तो वो सबसे पहले अनायतुल्लाह ने मुतारफ़ किया। बिल्कुल उन्हीं का छपता था। इसलिए मैंने जो रिसर्च वर्क था मेरा, तो वो यही था कि पाकिस्तानी अदब में जुर्म सज़ा के बुनियाद गुज़ार, हालांकि इससे पहले लिखी गई थी क्राइम फिल्म, लेकिन उनके जो करैक्टर थे वो पाकिस्तानी नहीं थे। इस तरह से थे कि मतलब अगर हम ये छोड़ दें कि ये पाकिस्तानी राइटर ने लिखा है, तो वो लगता था कि शायद वो यूरोप की या किसी और जगह की या किसी और मुल्क की बात हो रही है। मतलब एक्चुअली बच्चों के अदब में भी हमें, मेरा ख्याल है कि बच्चों को करीब लाने के लिए अडॉप्ट बहुत चीज़ें तो देखते हैं। देखें, खोजियों की जो बात थी ना जी, ये एक ट्रांजिशन पीरियड ही था ना जी। देखें, उमरो यार के पास जंबील थी, तो वो जंबील हम फैंटेसी के तौर पे आज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जंबील से क्या का क्या हो गया। मतलब आप देख लें कि कंप्यूटर है जंबील, टैब आ गया।
ठीक है ना, कंप्यूटर ही है ना, जो चीज़ उसमें डाल दें उसके बाद वो मिलियंस और बिलियंस चीज़ें जो है ना जी वो कंप्यूटर में डाल सकती हैं। तो इसलिए मतलब जो है ना जी ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उड़न खटोला। हाँ बिल्कुल, खोजी जो थे वो अब आपके यही है ना जी, आपकी ये जो मोबाइल की हिस्ट्री है, मोबाइल हम तो दुआ करते हैं पुलिस वाले कि अगर कोई डकैती करके चले जाए चोर तो साथ मोबाइल भी ले जाए, तो ये बाकायदा आपका खोज ही है। तो और बहुत सी फिर आपका अब DNA टेस्ट है, ठीक है ना जी, उसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अब बल्कि अब तो एक चलती रहे ना जी हमारी हुकूमत, तो तरक्की होती रहे। तो पिछले दिनों में बड़ी सजेशन थी कि जो मल्टीपल मर्डर्स के या इस तरह के रेपिस्ट हैं तो उनको एक चिप लगाई जाए ताकि उनको पता चले कि भाई ये कहाँ है। अभी आपको हाँ जी, अब आपको पता है एनिमल्स की तरह, तो अभी आपको पता है कि मतलब जितने भी इश्तिहारी हैं वो उनको वो आप तो ज़्यादा जानते हैं कि वो किसी जगह पे भी अगर कुछ ट्रांजिशन करते हैं पैसे की या बैंक जाते हैं या किसी जगह पे कंप्यूटर को छेड़ते हैं तो डेफिनेटली उनका लोकेशन पता चल जाती है कि वो इस जगह पे इस वक्त मौजूद है। तो इनके चिपें लगनी शुरू हो जानी है सब, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल, फिर जुर्म और तरह हो, चिपें लग जाएंगी तो फिर इसका तोड़ कोई और क्रिमिनल निकालें, ये तो चलता रहता है ना जी क्रिमिनल। रिसेंटली फिर मैंने थोड़ा सा ये एक तलिस्म तोड़ा, लेकिन वो भी फ़ारसी का करैक्टर है। वो एलिया नाम की सीरीज़ मैंने अभी जो है फ़ारसी से उर्दू में ट्रांसलेट की है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो कॉमिक सीरीज़ जो है ना पाकिस्तान में पहली होगी इस लेवल पे। तो बाकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, फिर अल्लाह करे मतलब जो है ना जी फिर वो आपको पता है थोड़ा सा वो राज अफशा कर दिए जाए तो मतलब जो है ना जी उसमें कई लैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती। तो ये नहीं बताना कि ये कहाँ से छप रही है, कौन छाप रहा है, इससे ज़्यादा क्या है, लेकिन ये पाकिस्तान में बिगेस्ट कॉमिक सीरीज़ इंशाल्लाह। इसकी कितनी होंगी किताबें? ये सीजन्स हैं, 15 वॉल्यूम्स मैंने करके भेजे हैं, तो 1500 पेजेस हैं। तो ये हर साल बेसिकली ना जी नए सीजन्स होंगे। तो हर साल ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। बेसिकली ये एक हाबील से चली है जंग, जो काबील से, तो जो किलर है तो वो उसके जो वॉरियर्स आते हैं हिस्ट्री में वो सारे वो ब्लैक अंधेरे में अंधेरे से शुमार करते हैं। और इसके मुकाबले में जो फैमिली है वो नूर की फैमिली है, तो हज़रत खिज़र और हाम और सारे जो है ना जी वो उन वॉरियर्स की मदद करते हैं। तो ये एक बच्चा आम बच्चा है, तो इसका फादर वॉरियर होता है, तो सडनली इसको पता चलता है कि मुझ में ये कोई ख़ास चीज़ है। तो फिर इसको हज़रत खिज़र जो है वो खिज़रा में ले जाते हैं और वहाँ एक अंगूठी जो ये ख्वाब में देखता है वो इसको मिलती है, और इससे फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको पता चलता है कि मेरा एक्चुअली क्या करना है मैंने। तो फिर इसको जंगें दिखाई जाती हैं पास में जाके, फिर ये आगे फ्यूचर में जो है ना जी आगे मतलब इस तरह ये ऑन गोइंग मतलब एक स्टोरी। और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में इस लेवल सबसे बड़ी मतलब जो है